Yes. Although there cannot be any question in your examination why conversion is required. कभी नहीं पूछेगा कि in the computer system why we are doing conversion. That cannot be a question in the exam. But जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, नॉट राइट नाउ बिकॉज नाउ यू आर अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, व्हेन यू विल बी डूइंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप करोगे, जब आप जॉब के लिए जाओगे, देन दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन कि व्हेन वी आर लर्निंग कंप्यूटर सिस्टम देन व्हाई कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड. इसका मीनिंग क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी. सो इन द मैथमेटिक्स, okay, in the mathematics we have a number system that we know there is a number system, and there are lots of different types of numbers that we are studying. As for example, अगर मैं number system की बात करूं, if I am writing 1 2 3 4, so ये number system कौन सा है, जल्दी से बताओ. Whole numbers and natural numbers. So 1 2 3 4 it is a natural number, है ना, a number which starts from 1 2 3 4 onwards infinity, and when a number is starting from 0, ये क्या हो जाएगा, Whole numbers. होल नंबर्स. सिमिलरली अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिख दूं 2/4 1/2, सो वी नो दिस जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, है ना, which is in the form of p/q. तो सिमिलरली वी हैव लॉट्स ऑफ नंबर सिस्टम दैट वी आर लर्निंग इन द मैथमेटिक्स. अब जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होते. व्हाई? बिकॉज वी हैव सीन जो हमारे पास सीपीयू है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? Central processing unit. Central processing unit. जो हमारा CPU that is divided into two category, that is control unit and Arithmetic logic. arithmetic logical unit. Arithmetic logic unit का what is the feature of arithmetic logic unit? Where we are doing arithmetic and logical operation. Like if I want to do 2 + 2, that is, we know that is 4. So that is done in the arithmetic logic unit. Okay. And we all know our computer system only understand the two words 0 and 1. Then how it is going to interpret this first term, this is second term, this is third term, fourth term and fifth term. इस पूरे एक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? आपके 5 टर्म है. 5 टर्म क्या है? तो जो आपने लिखा 2 2 4, सो दे आर नोन एज योर नंबर सिस्टम. ये नंबर्स हैं, करेक्ट, कंप्यूटर आपके नॉर्मल नंबर्स है. और जो प्लस है और जो इक्वल है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंबल्स. यस और नो? Yes. Then plus is what? Plus is known as your addition operator. अगर कहीं पे भी आपको प्लस दिखेगा, that is the addition operator. And when we are seeing equals to sign को हम क्या बोलेंगे? Assignment operator. क्या बोलेंगे? Assignment operator. That we have learned in the previous classes. क्यों? आपको मैंने पढ़ाया था, if I am writing x equals to 5. So this is the mathematical expression. This is a variable x. In the variable x, I am assigning the value 5. So this is assigning 5 into the variable x. तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. समझ में आया? Yes. तो किसी भी एक्सप्रेशन में क्या होगा? किसी भी एक्सप्रेशन में आपका ऑपरेटर होता है और क्या होता है? ऑपरेंड होता है. ऑपरेटर होता है और ऑपरेंड होता है किसमें? किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर. ओके. नाउ कन्वर्जन की क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज वॉट एवर नंबर्स वी आर यूजिंग, वी ऑल नो कि आवर कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट अंडरस्टैंड 2 3 4 5 6. सो ऑल द 2 3 4 5 6 मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ 0 and 1. So that is why conversion is very important topic when we are learning computer system. तो ये क्यों जरूरी है, ये आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, तो आप जवाब दे पाओगे. Why conversion is required? Yes. बोलो. Because computer cannot understand the Any number system except 0 and 1. except, yes, That is known as binary numbers. number system. Okay. So अब मेरा पहला जो नंबर सिस्टम है, that is known as binary number system. Binary number system. So what is binary system number? Any number which is converted into the form of 0 and 1. That is a binary number system. इसके बाद हमारा एक नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ते हो, उस पूरे मैथमेटिक्स को हम एक कॉमन नंबर बना लेंगे. दैट इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम. तो डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब हो गया 1 से लेकर 2 से लेकर या 0 लिख लो, ये पूरा इंफिनिटी तक. द नंबर दैट वी हैव लर्न ऑल विल कम अंडर द डेसिमल नंबर सिस्टम. इसके बाद तीसरा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम, द वर्ड इज ऑक्टल.
ऑक्टल का मतलब होता है 8। कितना, क्या मीनिंग होता है? 8। सो 8 नंबर सिस्टम के लिए क्या होगा? 0 to 7। अगर आप 0 से काउंट करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 हो गया ना? 0 to 7 8। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्टल। इसके बाद एक और हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्यूटर सिस्टम में, दैट इज नोन एज हेक्साडेसिमल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेक्साडेसिमल? 16 हेक्साडेसिमल का numbers. मीनिंग होता है 16। ओके, इसका मीनिंग होता है 8, इसका मीनिंग होता है 2, और इसको हम लोग लिखते हैं बेस 10। सो जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, वॉट एवर आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट, सो दीज ब्रैकेट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, है ना? किसी भी नंबर के नीचे, नीचे अगर 2 लिखा है, इसका मतलब वो नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम है। किसी भी नंबर के आगे नीचे मैंने 10 लिखा है, तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। किसी भी नंबर के आगे अगर मैंने 8 लिखा है, तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और किसी के नीचे मैंने हेक्साडेसिमल का 16 लिखा है, दैट इज 16। तो ये कितना हो जाएगा? 16। 16 विल बी काउंटेड फ्रॉम 0 टू, बताओ, 15. 15। ओके, 0 to 15। अब आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से लिखती हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब अगर मुझे 10 लिखना है, 10 क्या लिखेंगे? 1 0 लिखेंगे। Yes. ये हमने पढ़ा है, नॉर्मल तो हम यही पढ़ते हैं। 10 का मतलब 1 0, 11 का मतलब 1 1, 21 का मतलब 2 1। अब क्या मैं बोल दूं कि ये जो 1 0 है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0, Yes. और ये 1 1 किसका कॉम्बिनेशन है? 1 1 का। तो क्या मैं यहाँ पे इसको समराइज कर दूं कि 9 के बाद आप वर्ल्ड में अगर किसी भी नंबर को इमेजिन करोगे, दैट नंबर सिस्टम, दैट नंबर मस्ट बी द कॉम्बिनेशन फ्रॉम 0 to 9। अरे, यस और नो? Yes. कोई भी नंबर बोलो, एक नंबर बोलो। 299. 299। ना 299 मीन्स 2 एंड 9, 9 को हमने 2 बार ले लिया। क्या कोई भी नंबर आप इमेजिन कर सकते हो जो 0 और 9 के अलावा बनेगा? बताओ। नो, वी कैन नॉट इमेजिन। सो इसीलिए 10 11 12 13 14 15 को हम ऐसे नहीं लिखते हैं। 10 को हम लिखते हैं ए से, इसको लिखते हैं बी से, इसको सी डी ई एंड एफ। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 10 11 12 13 14 एंड 15। इतना समझ में आया? Yes. तो दिस इज योर नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम की कैटेगरी है। ओके, दिस इज द कैटेगरी ऑफ नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। नाउ मैं कुछ एग्जांपल आपसे पूछ लेती हूँ। लाइक आई एम राइटिंग 21 और इसके नीचे मैंने बेस दे दिया 2। तो ये किस तरीके का नंबर सिस्टम है? बताओ। Binary number system. इट इज बाइनरी। हम ऐसा बोलेंगे कि बाइनरी है, क्यों? क्योंकि आपने बेस को चेक किया, रिप्रेजेंटेशन, या आप इसको बोल दो बेस। आपने बेस को चेक किया और बेस से आप ये बता रहे हो कि दैट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। बट एक्चुअली लॉजिकली ये बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा? सिर्फ 0 होगा या फिर सिर्फ 1 होगा। तो एक्चुअली ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। बट स्टिल एक पहला तरीका है कि ये आइडेंटिफाई करो कि वो आउट ऑफ द 4 कैटेगरी वो कौन सा है। अब जैसे मैं एक सही डाल देती हूँ, 45 और 8, ये कौन सा है? बताओ। Octal. ऑक्टल। क्यों? क्योंकि ऑक्टल में हमने देखा 0 to 7 एंड 4 and 5 बोथ कम्स अंडर द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, तो ये सही है हमारा। तो ये आपको समझ में आया कि अगर नंबर आपको गिवन होगा तो नंबर को किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। Yes. ठीक है, अब इसका हम कन्वर्जन देखेंगे। तो सबसे पहला कन्वर्जन जो इजीएस्ट होता है, सबसे पहले इजी आपको बताती हूँ। जैसे कोई भी आपको बाइनरी नंबर दिया है, कोई भी बाइनरी नंबर, आप कोई भी बाइनरी नंबर बोलो। 10. बाइनरी नंबर 10 होगा या 1 0 होगा? क्या बोलेंगे इसको? वी कैन नॉट 1 हैव 0. बाइनरी नंबर सिस्टम ना। बाइनरी का मतलब 1 0 हो गया। अगर तुम बोले 10, तो अब पहले से पहले ये सिखा देती हूँ, चलो। अगर तुम मुझे बोल रहे हो 10, तो आई विल कंसिडर दिस 10
एज अ डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना, ये एक डेसिमल नंबर है 10। और मैं और अच्छे से समझने के लिए इसके नीचे बेस कर देती हूँ 10। अब क्लियर है? अब इस डेसिमल को मुझे किस में कन्वर्ट करना है बताओ, इसका क्या मतलब है? बाइनरी, बाइनरी में तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला कन्वर्जन डेसिमल टू टू बाइनरी। बाइनरी। कैसे करेंगे, आइडिया है आपको? नहीं। अब देखो, कोई भी नंबर है उसको कैसे हमने पहचाना, उसके बेस से। बिकॉज कि यहाँ पे इस नंबर का बेस 10 है, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर हो गया। इसको हमको कन्वर्ट करना है ऐसे नंबर सिस्टम में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस 2 है, मतलब बाइनरी में करना है। अब बाइनरी का मतलब क्या होता है पता मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी? बाइनरी का मतलब होता है दो, बाइनरी बाई। इसी तरीके से टर्नरी का मतलब क्या होता है बताओ? थ्री। 3। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 6। नहीं, क्वार्टर। 4। हाफ ईयरली आपका एग्जाम होता है, क्या बोलते हैं इसको? 6। 6। एनुअली जब एग्जाम लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? 12। 12 मंथ्स। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी यूनरी, यूनरी का मतलब क्या हो जाएगा? 1। सो दीज आर इंग्लिश टर्म, इसमें कुछ कंप्यूटर जैसा लॉजिक नहीं है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। हाँ, अब बाइनरी का मतलब होता है दो। तो किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। बहुत ध्यान से सुनो, 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो, हमें पता है 2 5 होता है 10, तो पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या आया? 0। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको साइड में लिख लेना। सिमिलरली 2 से लगाया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो मैं यहाँ सिंपल डिवाइड कर रही हूँ, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया? 0। ये तुमको समझ में आया मैंने डिवाइड करके कैसे लिखा? यस। हाँ। तो ये, अब आपको देखो ये मैं क्या लिख रही हूँ, इसके बाद ये जो नंबर आया नीचे से ऊपर, हमने क्या बोले? बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप यस। आप लोगे तो बॉटम टू टॉप क्या आएगा? 1 0 1 0। क्या ये सारे जो 4 डिजिट के नंबर है 0 1 के फॉर्म में है? हाँ, तो क्या ये 10 को हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें? बाइनरी में। ये जो 10 का बेस 10 था, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2, 2 का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ बाइनरी नंबर होगा। और जब आप यहाँ पे चारों डिजिट को देख रहे हो, चारों डिजिट में देखो 1 0 है या 0 1 है, इट मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। तो जो भी नंबर है उस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 क्या हो गया कि जो भी नंबर है, जो भी नंबर गिवन है, उस नंबर गिवन को सबसे पहले आप डिवाइड करोगे किससे? 2 से। ओके। स्टेप 2 क्या है? जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 0 और 1। जो भी रिमाइंडर है उसको आप राइट करोगे साइड में, है ना। और उसके बाद स्टेप 3 क्या है कि आप बॉटम टू टॉप उसको लिख दोगे, बॉटम टू टॉप आप रिजल्ट को ऐड कर दोगे। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? 1 0 1 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 0 1 0। समझ में आया? यस। अब कॉपी निकालो और जरा इसको कन्वर्ट करो और बताओ मुझे आंसर। हाँ। एक का बताओ। हाँ, कर रही हूँ। हम्म 1 1 0 0 1। हाँ बताओ। 1 1 0 0 1। 0 0 1, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पे करती हूँ। 25 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2, 12 2 जा 24, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 1। फिर ये 6 से लगाएंगे, ये आ जाएगा 0।
2 3 जा 6 0, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, तो दैट इज 1 1 0 1, दैट इज करेक्ट। समझ में आया पहला आपको? यस। अब दूसरा सिखा देती हूँ, यहाँ पे कन्वर्जन टू। कोई भी डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो कोई भी डेसिमल नंबर है उसको किस में कन्वर्ट करना है? बेस क्या होना चाहिए? 8। 8। इसका मतलब डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 8। 8 से। सिंपल सा लॉजिक है, एक ही तरीका है, सबका वही यूज होगा। और यहीं पे सिखा दूंगी आपको कन्वर्जन 3। व्हाट इज द कन्वर्जन 3? इट विल बी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो दिस इज डेसिमल एंड दिस इज और हेक्साडेसिमल, जिसको हम 16 लिखेंगे। तो इसमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? बाय 16। 16 से। चलो अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, सॉल्व करके मुझे बताओ। 35 इसको कन्वर्ट करो 8 में, और सेम 35 है, इसको कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में। करो, पहले एक करो। एट से 8 से डिवाइड करोगे किसको? 35 को। मैम 43 आ रहा है। चेक कर लेते हैं। 43 आप बोल रहे हो ना? हाँ, तो 8 4 जा 32। 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। नाउ वी ऑल नो कि 8 हमारा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो ये नीचे से बॉटम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 43। एंड नाउ दिस इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज 8 का रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? 0 से 7 तक। तो 4 और 3 दोनों क्या है? 4 और 3 दोनों आपका 7 तक है ना? यस। हाँ, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट कन्वर्जन है। सिमिलरली इसको लगाएंगे तो 16 2 जा 32, तो ये क्या आ जाएगा? 23। 3। सो दिस इज द कन्वर्जन। ये कन्वर्जन हमने किससे सीखा? ये कन्वर्जन हमने सीखा, डेसिमल को कन्वर्ट किया हमने बाइनरी में, और डेसिमल को हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल में, और डेसिमल को हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। अब इसी के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आएंगे सॉल्व करना। तो कैसे नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है, कैसे नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, वो समझ में आया यस। है ना? अब एक और सिखा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगी तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो, एक बहुत आसान होता है। अगर तुमने बाइनरी कन्वर्ट कर लिया है ना, बाइनरी अगर कन्वर्ट कर लिया, तो अभी तुमने सीखा है डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। अब अगर तुम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हो ना, इससे ऑक्टल में कन्वर्ट करना और इससे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। अब ऑक्टल हमने अभी पढ़ा, ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं 3 बिट से, और हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट से। क्यों करते हैं 4 बिट से? उसका रीजन है, ऑक्टल का मतलब है 8, इसका मतलब है 16, ठीक है। 8 को क्या मैं लिख सकती हूँ? 2 टू द पावर 3, और इसको क्या मैं 2 टू द पावर 4 लिख सकती हूँ। यस। तो दैट इज वाई इसको 3 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको 4 बिट, इसको हम बोलते हैं बिट। 4 बिट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, कितना भी बड़ा बाइनरी नंबर सिस्टम, 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1, अब ये एक नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाऊंगी आपको, उल्टा भी सिखाऊंगी, पर अभी समझ में आ रहा है ना कि ये कितना बड़ा नंबर है। यस।
इतने बड़े नंबर को, इसको मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी तो क्या ये सही है? यस, इट इज करेक्ट, बिकॉज दिस इज अ बाइनरी नंबर। अब अगर इस बाइनरी नंबर को मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, किसमें? ऑक्टल में। तो मैं कितने की ग्रुपिंग करूंगी? 3 की। और कहां से करूंगी? लेफ्ट हैंड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से मैं नंबरिंग करना शुरू कर दूंगी। अगर ऑक्टल में करना है तो मैं 3 का ग्रुपिंग करूंगी। 3 3 3 3 3। और यहाँ पे 3 नहीं है, कोई बात नहीं। किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लगा के कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं यहाँ मान लेती हूँ कि यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे 3 बना दिए। अब ये जो 0 0 1 आया, इसको हम बोलते हैं 1। ये भी है 1। ये कैसे मैं निकालू ये आपको बता देती हूँ। ये शॉर्टकट है, आई एम राइटिंग है शॉर्टकट। शॉर्टकट एक समझ लो। नंबर सिस्टम में आपका होता है, हम स्क्वायर में लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं। शॉर्टकट में सिखा रही हूँ आपको। स्क्वायर वैसे लिखते हैं 1 2 4 8। स्क्वायर है 16 32 64। ये हो जाएगा 128। देन यू हैव व्हाट 256 एंड सो ऑन। ये स्क्वायर में हमने लिख दिया। अब देखो 0 0 1 है, तो 0 0 1 का क्या करना है? ये जो मैंने ये लिखा है मैंने, ये वाला नंबर सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम लिखा है, ये मेरा शॉर्टकट ट्रिक है। ओके, ये ऐसे ही लिखाता है। अब अगर मुझे ये पता करना है कि 0 0 1 क्या है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करूंगी। 1 0 0। तो जब ये 3 पोजीशन मैंने लिखा तो 1 किस पोजीशन पे आया? सिर्फ 1 पे, है ना? इस दोनों के पोजीशन पे 0 आया। तो दैट इज वाई ये जो 3 बिट का 0 0 1 है, उसको मैं यहाँ पे लिख दी 1। इसी तरीके से ये से मैं 1 लिख दी। अब यहाँ पे है 1 1 1। 1 1 1 को पुट करोगी तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ? यहाँ पे आ जाएगा पहले 1, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1। क्या हो जाएगा नंबर? 4 + 2 + 1 दैट इज 7। कैसे 7 लिखा आपको समझ में आया? नहीं आया? अच्छा इनको ऐड किया ना। आया तो हाँ, सबको ऐड कर दिया। आया तो इसका बताओ, 0 0 1 का बताओ। 9। 9 कैसे होगा? 0 0 1 तो यहाँ से लिखना शुरू 1 0 0। हमेशा लेफ्ट हैंड पोजीशन से लिखेंगे। ऑलवेज यू विल स्टार्ट विथ 1 ना। तो 4 और 2 की पोजीशन पे तो 0 है, तो ये तो 1 ही आया। चलो ये बताओ, 0 1 0 बताओ। स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पोजीशन। 0 1 0। किस पोजीशन पे 1 आया? सिर्फ सेकेंड। 2 पे। और ये फाइनली फिर 0 0 1 है, तो ये 1 ही आएगा। तो जब आप इस सिस्टम को कन्वर्ट किए हम ऑक्टल में, तो ये क्या है? 1 2 1 7 1 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। तो क्या 0 से लेके 7 तक में सारे डिजिट है? यस। ये हमारा आ गया ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। तो तुमको क्या प्रैक्टिस करनी है? ये शॉर्टकट मेथड। सो दिस इज द स्क्वायर। ये मैं सिखाऊंगी कैसे करते हैं, पर अभी आप ये शॉर्टकट समझो कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हमने समझा। और किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में करना है तो 3 बिट की ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए ये शॉर्टकट मेथड आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड साइड से स्क्वायर ले लो। 1 2 4 8 16 32 64 7। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से ग्रुपिंग, राइट हैंड साइड से हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं। ओके, और इसको यहाँ पे बैठा रहे 0 0 1। तो 0 0 1 3 डिजिट है, तो किस पोजीशन पे 1 आया? तो 1 आया सिर्फ एक पोजीशन पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1। इसके बाद फिर हमारा जब ये 3 डिजिट का आया था, तो तीनों की जगह पे 1 1 है, तो इसको हमने ऐड कर दिया। तो 4 + 2 + 1 दैट इज 7। तो ये इस तरीके से बनता है। अभी आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे आपको एक दिन में इतना नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि दिस इज नॉट वेरी इजी टॉपिक। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना? तो मैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन आपके बुक में भी होगा, वहां से भी कर सकते हो।
डेसिमल नंबर दे दिया मैंने, जैसे 25 तो हो गया, 35, 46, 99, 28, 57, 67। तो ये सारे डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको किसमें किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल हो जाएगा। यस। और ये असाइनमेंट हुआ आपका 1। असाइनमेंट 2 क्या है कि जब आप फर्स्ट स्टेप कर लोगे, दैट इज डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे, तो अभी जो पढ़ाया एक कोशिश करना बाइनरी से ऑक्टल में करने की। क्या करना पड़ेगा? ग्रुप करना पड़ेगा 3-3 का। तो ये ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर वो कल पढ़ाएंगे। जैसे ये आप शॉर्टकट ट्रिक याद करो, देखो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अगर मैं तुमको बोलूं 101, इसका क्या मतलब है बताओ? ये कितना डिजिट हो गया डेसिमल का? 5। वाई? बिकॉज 4 के पोजीशन पे 1 है, 1 के पोजीशन पे 1 है, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 5। समझ में आया कैसे 5 लिखा? अब तुम देखो, ये 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1, 2 1 जा 2। क्या यहाँ पे तुमको 101 आया? यस। ये तो अभी तुमको क्या सिखाया मैंने? ये जो डिवीजन होता है, दिस इज नोन एज लेंदी मेथड, इसको बोलते हैं लेंदी मेथड, है ना? ये डेसिमल नंबर है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नीचे से ऊपर लेंगे तो ये हमारा लेंदी मेथड है। इसी को हम ऐसे शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 1, ये कितना नंबर होगा डेसिमल में बताओ? किस पोजीशन पे 1 है उसको ऐड करो। किस किस पोजीशन पे 1 है? 6। अब देखो 6 है, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2। क्या 110 आया? यस। अब एक और बताती हूँ, चलो 15 15 देखा, 15 यहाँ पे तो है नहीं, है ना? 15 है नहीं, 15 कैसे काउंट करेंगे? तो 8 4 12, 12 3 15, सबको जोड़ दो, 8 4 12, 12 2 14, 14 15, ये 15 हो गया। 4 बार 1 दिया, देखो 15 है, 15 को 2 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14 1, 2 3 जा 6 1, एंड अगेन 2 1 जा 2। क्या 4 बार 1 आया? यस। तो ये ट्रिक याद रहेगा। ये ट्रिक किसके लिए काम करता है? जिस पोजीशन पे 1 है उस पोजीशन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो मुझे बता दो, 25 के कितना होगा, इसको देखिए बताओ, 25 जल्दी से। 25 इस ट्रिक को देख के बताओ। 25 तो यहाँ नहीं दिख रहा है, 25 कुछ यहाँ पे होगा, है ना? हाँ, पर 16 के बाद 32 है, 25 इस दोनों के बीच का है, तो 16 आएगा। 16 के बाद 8 को जोड़ोगी तो 16 में 8 कितना हो जाएगा? 24। और एक यहाँ से 1 उठा लो, और 4 और 2 की पोजीशन पे क्या हम लिख देंगे? 0 0। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 5। अब देखो 25 को 2 से करके देख लो, 1 आएगा, है ना? 6 से करेंगे 0, 2 3 जा 6 0, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, आया ना? 1 1 0 0 1। यस। So this is the another way. ये किसका है? ये अगेन दिस इज द बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और वाइसी वर्सा। चलो ये वाली क्लास अभी वाइंड अप हो जाएगी, बट अभी हमने क्या समझा ये आपको समझ में आया ना? हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लेवल पे यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। सो वी हैव डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्सा। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, फिर हमने कन्वर्जन को समझा है, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करना, जो यहाँ पे मैंने ये असाइनमेंट दिया इसको प्रैक्टिस करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।
Yes. ठीक है, Yes. थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, इसमें जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना है, आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा, जल्दबाजी में करोगे नहीं समझ में आएगा। Yes. Okay, चलो, this class will be wind up in few minutes, few seconds I guess. मैं ये आपको